Hello 10th class students. So in the last video I explained you that whenever any element loses electron then it will get positive charge, and how much positive charge it will get, it will depend upon the number of electrons which it has lost. And whenever an element gain electron, whenever any element gain electron, then it will get negative charge. And how much negative charge it will get, it will depend upon the number of electrons which this element has gained. So these are few points which I taught you in the previous video. Now today in this video I am going to explain you that why positive charge appear when any element loses electron, why negative charge appears whenever any element gains electrons. So it is very important to understand that why the charge appears on any element after gaining or losing any kind of electrons. So my dear students, to understand this, let us take an example. Previously we have explained the structure of NaCl, the formation of NaCl, metal, non-metal combined. Sodium is a metal and chlorine is a non-metal. When metal and non-metal combine, then ionic substance form. Why it form? Because sodium actually loses one electron and chlorine gain one electron. What happens? The electronic configuration of sodium is 281 because it has atomic number 11, 281, and electronic configuration of chlorine is 287. So chlorine की जो electronic configuration है, it is 287, and the electronic configuration of sodium is 281. So you all know in the last shell there should be 8 electrons or 0 electron. So now in case of sodium it has only 1 electron, so it cannot gain 7. It is easy to lose 1 electron, so it is most probably lose 1 electron, and chlorine will gain 1 electron. You all know this. So what will happen? Sodium atom will lose 1 electron and chlorine will gain 1 electron, and on sodium there will be positive charge and on chlorine there will be negative charge. I already explained you that the element which loses electron, it will get positive charge, and the quantity of this positive charge will depend on the number of electrons which it has lost. And similarly chlorine has gained 1 electron, so the one negative charge will appear on this. So you all know this because I already explained you in the previous video, but today I am going to tell you why after losing 1 electron 1 positive, why after gaining 1 electron 1 negative. ये दिमाग में क्वेश्चन कुछ बच्चों को आया होगा कि क्यों ये प्लस आता है, क्यों माइनस आता है. ये 9th क्लास का टॉपिक है, 9th में आपने किया है ये, आई नो, बट अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द 10th क्लास बिकॉज सम ऑफ यू मे हैव फॉरगॉटन. सो इसलिए जो है ये मैं आपको टॉपिक अभी बता रहा हूँ. तो लिसन केयरफुली. What happened? Suppose this is a sodium atom. Sodium atom, its atomic number is 11. Sodium atom का atomic number कितना बचे? 11. और 11 atomic number का मतलब ये होता है कि इसमें जो प्रोटॉन है वो भी 11 है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कितने हैं? 11 है. बस ये आपने एक बार दिमाग में रखना है कि atomic number means number of protons and number of electrons. So number of protons, number of electrons, वो क्या है? 11. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है. तो बच्चों एक बात तो आपको पता होगी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, उसको हम मान के चलते हैं. जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसको क्या मान के चलेंगे? -1. और जो प्रोटॉन पे चार्ज है उसको क्या मान के चलेंगे? +1. सो एक प्रोटॉन पे +1 चार्ज है तो 11 प्रोटॉन है हमारे पास. एक प्रोटॉन पे +1 है तो 11 पे कितना हो जाएगा? +11 चार्ज.
और एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास कितना चार्ज है -1, तो 11 पे कितना हो जाएगा -11। तो दोनों को अगर सम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 जो प्रोटॉन है उन पे +11 चार्ज है, 11 इलेक्ट्रॉन है उस पे -11 चार्ज है, और इनका अगर सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, न्यूट्रल आ जाएगा। 0 मत चार्ज मीन्स न्यूट्रल। सो कोई भी एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर जितना भी है, इन केस ऑफ सोडियम इट इज 11। सो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स हैं, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव होता है, 11 प्रोटॉनों पे 11 पॉजिटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव होता है, 11 इलेक्ट्रॉनों पे 11 नेगेटिव हो जाएगा। अब ये दोनों ही है एटम में, किसी भी एलिमेंट में ये दोनों ही होते हैं, तो ये दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसलिए चार्ज इनका ऑपोजिट है, तो इनमें कैंसिल होकर 0 चार्ज आ जाता है। कोई भी एटम है आमतौर पे उस पर कितना चार्ज होता है 0, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है, whenever this sodium will lose electron and एक इलेक्ट्रॉन इसने कर दिया, लूज कर दिया। होता क्या, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्रोटॉन तो कोई लूज नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही किया, तो प्रोटॉन तो रह गए वही 11 के 11, प्रोटॉन तो 11 थे, अभी भी 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 11 थे, अभी कितने रह गए हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया। सो अब whenever any element loses electron, then what happens, number of electrons which previously was 11, now the number of electron in the sodium is 10 and 1 electron has been lost. So अब इनका अगर सम करोगे आप, ये प्रोटॉन 11 है प्लस और इलेक्ट्रॉन 10 है माइनस, तो इनको अगर सम करोगे तो आ जाएगा +1। सो इनका सम करोगे तो आ जाएगा +1। सो चार्ज जितना इसका सम आएगा वही इस पे चार्ज बेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन एक कम है, इन दोनों को जब ऐड होगा चार्ज, प्रोटॉन टोटल 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, जब ऐड होगा तो +1 चार्ज इस पे आ जाएगा, किस पे, सोडियम पे। सो ये एक समझने के लिए एक एग्जांपल थी कि whenever any element lose electron then it will get positive charge, when gain electron then what will happen, let us understand that also, कि अगर कोई एलिमेंट गेन करेगा तब क्या होगा वो भी आपको समझना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 का मतलब है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 17, और प्रोटॉन एक पे होता है एक पॉजिटिव, 17 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा 17 पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, वो भी कितने हो गए 17, तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव, तो 17 इलेक्ट्रॉन पे 17 नेगेटिव, टोटल चार्ज होगा इस पे 0। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, whenever chlorine will gain 1 electron, तो क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, प्रोटॉन तो उतने बचेंगे +17, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे 17 पहले थे, एक ऐड हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, एक इलेक्ट्रॉन पे एक नेगेटिव है तो 18 पे होंगे 18 नेगेटिव। अगर इनका आप सम करोगे टोटल प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, इनका सम करोगे देन व्हाट विल हैपन, -1, the sum will be -1, so it will get -1 charge. So whenever an element gain 1 electron then negative charge appear। अब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो 2 नेगेटिव आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे 3 नेगेटिव आ जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर है 8 का मतलब है प्रोटॉन्स भी 8 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 8 है, और इनका सम भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन जब इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं तब क्या होगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन तो ऐसा रहेगा, जो प्रोटॉन्स है वो तो 8 ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ऐड हो गए, वो कितने हो जाएंगे -10, तो इन पे कितना प्लस करेंगे दोनों को तो आ जाएगा -2, तो
इस पे चार्ज भी कितना पेयर हो जाएगा, -2. So these are the examples in which you can understand why after gaining electron negative charge appears, why after losing electron positive charge appear. So it is important to understand it. If you understand this, then it will be easy to remember